flame. Good morning, sir. Good morning. Do you mind? I have told that the condition to form flame. Which fuels can form flame? Sir, the substances which can be easily converted into gas and are able to burn with flame. Yes, Yes, sir. those substances which are able to easily convert into gaseous part, gaseous state, they can burns with flame. So we are going to draw uh, flame to distinguish the type. Okay, look at here. There is basically three types or three zones of flames present. Okay. Mm, Yes, sir. three types or zones, three zones of flame authors. Which are the? सर सर जोन्स में तो इनर मिडिल और वो आउटर यही ना. हाँ, वही टाइप्स ऑफ फ्लेम मीन्स वही होता है. जितने जोन्स में वो डिवाइड होता है, और हर एक जोन्स तो हम लोग फ्लेम का भी नेमिंग करेंगे. ठीक है, लाइक ब्लू जोन, येलो जोन था, वही हाँ वाला. सर. हाँ, सर. ओके, तो सपोज अगर हम लोग फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो कैंडल बर्न कर रहा है. तो there is three types or three zones. As we know, the maximum part of flame is covered with reddish yellow part. Okay. सर स्क्रीन बहुत हाँ, ब्लर आ रहा है सर. सर. अब ठीक है, सर. अब ठीक है. हाँ सर ठीक है. समझने लायक है सर. Okay. Basically, there is three zones. One is black zones, that is innermost part. Okay. Black zone is present at the middle of the flame. This is black. Okay. Then this black is covered with reddish yellow part. Okay. This is covered with reddish yellow part. Generally, it is called yellow zone. So reddish yellow part. Okay. And the outermost portion is basically blue colored. Okay. This red portion is basically reddish yellow. So I'm doing it quite yellow. Okay, but here yellow color will not show. Okay. So the three parts are, this is blue zone, सर टाइप्स के बाद क्या लिखे हैं? types of flame. सर, ब्लू फ्लेम तो सर आउटर मोस्ट होता है ना सर, सबसे बाहर. हाँ, सर outer थ्री outermost टाइप्स और में उसके बाद क्या है? three types or zones of flame. Three types or zones of flame. लेकिन सबसे ज्यादा हीट तो मिडिल लेयर देता है ना, इनर पार्ट जिसमें रेडिश कलर होता है. नहीं, सबसे ज्यादा नहीं हीट सर ऊपर वाला. ब्लू जोन में आता हाँ, है. सर. ऊपर वाला ही देता है. आउटर मोस्ट में बता रहे, सारा बता रहे. देखो, फ्लेम का नियर अबाउट जो टाइप्स या जोन्स का डिवीजन होता है, वो नियर अबाउट ऐसा ही होता है. ठीक है, जहाँ पर एकदम बीच में रहा मेरा ब्लैक पार्ट, एकदम बीच में, दिस इज कॉल्ड ब्लैक जोन, दिस इज ब्लैक, देन रेडिश येलो, देन ब्लू.
So this is blue zone. This is red zone. This is red zone. येलो भी लिख सकते हैं ना? हाँ, रेड और येलो, रेडिश येलो भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेड जोन और हम लोग इसको लिख सकते हैं येलो जोन। यस सर। दिस इज येलो जोन। येलो कलर दिखाई दे रहा है? आई डोंट थिंक। नहीं नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा, तब भी समझ जाएंगे येलो जोन लिखा है। हाँ, चलो लिख दिए येलो जोन। एंड दिस वन इज, ब्लैक जोन। this is black zone. Now we have to remember that this blue zone here, this blue zone here, complete combustion takes place. Okay, here complete combustion takes place. कंप्लीट कंबसन मतलब ज्यादा गर्मी होता है। Complete combustion means suppose we had 5 kg of fuels, तो टोटल 5 kg of fuels मेरा बर्न हो जाएगा। हाँ सर, That कुछ is बच complete नहीं। हाँ combustion, सही है सर, कुछ सही। बचेगा नहीं, ठीक है। येलो जोन इनकम्प्लीट कंबशन। और ब्लैक जोन में क्या बचता है? ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है, या फिर अनबर्न्ड सिर्फ पार्टिकल बोलेंगे, कार्बन अगर नहीं भी हो सकता है बहुत Black जगह पे, fruits देता है। हाँ, तो वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स मिला रहता है ब्लैक जोन पे। अब नॉर्मल कंसेप्ट से समझो। मेरे पास तो 5 kg फ्यूल्स, ब्लू जोन में 5 kg फ्यूल्स ही बर्न हो रहा है, और येलो जोन में 3 kg फ्यूल्स बर्न हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो व्हिच जोन विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट और मोर हीट? Sir, blue zone. Blue zone. So this is the hottest part of the flame. फ्लेम है तो हम लोग कोल्ड तो नहीं बोल सकते, so this is the hottest part of flame. This is the moderate hot, okay, and this is the least hot. और हम लोग बोल सकते हैं coldest part, but this is the least hot, least hot. Okay. Now the blue zone, it is called outermost zone. Red zone, it is called middle zone. Red or yellow zone, it is the middle zone, and black is the innermost zone. हाँ सर। Okay. Now यहाँ पर और स्पेस नहीं है, तो नीचे हम लोग लिख रहे हैं blue zone is outermost zone, and it occurs due to the complete combustion. It is the hottest part. Now tell me, blue zone will produce light or not? हाँ Yes, sir, sir. देगा। No. No, sir. Blue zone does not produce light. Yes. Okay. Light is being produced by the yellow zone Yes. or reddish zone. Okay, that's why it is called non-luminous flame. As this was the topic of class 8. Okay, non-luminous Yes, flame. sir. Which one is non-luminous flame? Blue zone is non-luminous. And red or yellow zone, red or yellow zone is the middle zone, Middle zone. and it is the luminous. हाँ सर। Just Yes, sir. just take an example. Suppose in a dark room we have a burning burner and a candle. So the which light, from burner or from candle, we can see maximum distance? सर कैंडल सर, ऑफ कोर्स। Candle. That's why and the maximum part of candle is yellow. That is the luminous part. Okay, but Yes, sir. color of flame, color of flame of burner is blue, and that not produce so much light. That's why it is the non-luminous.
यस सर, वो बस बर्न करने के लिए काम आता है। वो बस बंद करने के लिए काम होता है। लॉट्स ऑफ हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो हॉटेस्ट पार्ट है, बट वहां से उतना लाइट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है कि हम लोग चारों तरफ देख पाए। सर ये कैंडल में नहीं होता है, एलपीजी जब जलाते हैं तब ब्लू फ्लेम ही तो दिखता है। हाँ, एलपीजी में ही बोल रहे, एलपीजी में ब्लू फ्लेम हो रहा है बर्नर में, और कैंडल जला रहे तो कैंडल का मैक्सिमम येलो पोर्शन ही होता है, मैक्सिमम। तो येलो पोर्शन मीन्स incomplete and it producing light, so it is luminous, but blue portion जो है मतलब बर्नर वो नॉन लुमिनस। यहाँ पर जनरल हम एटी फ्लेम में तीनों तो दिखाई थी, इतने सारे पार्ट मेरा होता है इस फ्लेम में, Yes, ठीक है। sir. ये हाँ तब सर। देखने को मिलेगा, मान लो जब तुम लोग स्कूल में या फिर इन फर्दर जब भी हाई इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, जब प्रैक्टिकल लैब चलोगे, वहां पर जब तुम लोग बर्नर जलाओगे तब ये वाला फ्लेम वहां पर देखने को मिलेगा, दैट इज नीचे येलो ऊपर में ब्लू एकदम देखने को मिलेगा, ठीक है। और तब हम लोग तो जो भी केमिकल वर्क डन करना है, एवरी केमिकल वर्क डन शुड बी डन इन द ब्लू फ्लेम। हम लोग तो नीचे नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है, Yes, sir. बिकॉज दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये ब्लू तो बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इट विल ऑक्सीडाइजेस बिकॉज लॉट्स ऑफ हीट प्रेजेंट, हाँ so सर। this is oxidizing flame। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लेम से हमको इतने सारे टॉपिक याद रखना है। Okay, sir. ठीक है सर, हो गया। ओके, राइट करो। यस सर, हो गया। ओके, Sir, हाँ यस, सर। sir, so it means that if we put our hand in the lowest part of the candle, we will feel the much less effect of it. yes, we will Yes, feel sir. the much less effect of it, but if we put our hand, so the area of hand is so much large, so instead of this portion will not harm, but this portion will harm. But if we will place one stick, thin stick of iron or something, then we can feel that the portion which was present inside the innermost part, that will not burn, but the outer parts are burn। हाथ यस का सर। एरिया बहुत लार्ज है ना, तो उसको डालने से क्या होगा कि उतना सा पोर्शन उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी हम लोग तो जल जाएगा। ये थीन वायर लो, एकदम थीन वायर, उसको डालो, तब जाके इतना सा पोर्शन में देखने को मिलेगा कि वो बर्न नहीं हो रहा है, लेकिन अदर सब्सटेंसेस फ्लो कर रहा है। Yes, sir. ओके, हाँ सर, सब वो मैजिक बोलता है। हाँ। ये सर उसीलिए जब सर मैचस्टिक से थोड़ा मतलब कुछ धूपकाठी होता है ना सर, वो जलाएंगे तो ऊपर मैचस्टिक का जो फ्लेम होता है सर, ऊपर धूपकाठी जलने से जल्दी जलता है। हाँ, बिकॉज ऊपर की तरफ हीट ज्यादा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिमेंबर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा मेरे जो पार्टिसिपेट करे, दैट इज सैचुरेटेड Hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स। Saturated organic compounds, basically saturated hydrocarbons। Okay, why? Do you know why saturated hydrocarbons perform substitution reaction? सर Because they सिंगल are बॉन्ड, unreactive. Unreactive होते हैं, सर anything more? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से। और कुछ? And are inert. Okay, everything is right, दिन के साथ everyone is right, but consider one thing। Suppose I'm telling about methane, so what is the formula of methane? CH4। CH4। Now I'm drawing the structure. Suppose this is the CH4. Okay. Yes, Now sir. tell me what is the valency of carbon? सर 4। 4.
and here 4 single bond present. Yes, Okay, sir. it makes these substances generally inert and less reactive. So when maximum valency of the element, maximum valency of element here for carbon is is attained by the single covalent bonds, then it will participate by the substitution reaction because this bond will be substituted by another. So this molecule will again remain as a single covalent bonded molecule. that will generate सर much नहीं more समझ में आया stability. सर. सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना ये वाला. कोई भी एलिमेंट का for every element when its valency will be attained by the single covalent bond. For here carbon valency is 4 and 4 valency is attained by 4 single bond. Another compound it can be it can be attained its valency by multiple bonds. Okay, but we know that molecules with single bonds are much more stable compared to molecules with multiple bonds. So if this bond will be replaced, this bond will be replaced. So the element or the incoming group which are being added, it will again make single covalent bonded molecule. Yes, sir. हाँ सर Suppose सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा जो आएगा. single bond ही बनाएगा. It will again make single covalent bond. Suppose I am replacing hydrogen by H. So it will again in single covalent bonded, na? Yes So sir. both are in single covalent bond, both are unstable. That's why saturated hydrocarbons generally prefer to the actually prefer substitution reaction. ओ Okay, अच्छा ठीक है. in this substitution reaction, one bond will be substituted by the another group of elements or simple by any atoms. Okay, now always, not always, but for hydrocarbons, their hydrogen bond will be replaced by any other group. Yes, sir. So substitution reaction is the reaction where uh, hydrogen of hydrocarbons, hydrogen atoms of hydrocarbons replaced by some other elements. Okay, सर ऑक्सीजन नहीं आ सकता है ना सर ये एक्स के बदले. नहीं, सब्स्टिट्यूशन में ऑक्सीजन नहीं आएगा बिकॉज ऑक्सीजन विल फॉर्म डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हाँ तो सर. क्लोरीन आ जाएगा बट ना. इन सब्स्टिट्यूशन हाँ फिर उसका तो तो स्टेबिलिटी क्लोरीन. कोई भी हैलोजन आ सकता है या फिर कोई भी मोनोवैलेंट एटम आ सकता है. वो अच्छा ठीक है सर. So the reaction in which hydrogen atoms of hydrocarbons, hydrogen atoms or hydrocarbon are replaced by any other atoms, any other atoms is called substitution reaction. सर इसका एक एग्जांपल बताइए ना सर. Now, suppose we are reacting methane with halogen सर रिप्लेस्ड बाय के बाद क्या लिखे सर रिप्लेस्ड बाय. replaced by any other atoms. यस सर हो गया.
So suppose we are reacting methane with halogen. Okay. Generally chlorine favors Yes, in sir. presence of sunlight. Okay. So out of 4 hydrogen, 1 hydrogen will be replaced by 1 halogen. Yes, sir. So it will be CH3 H bond H, and that hydrogen will attach with halogen and it will produce HH. I check. Okay. Yes, So sir. suppose this was CH4, this was Cl2. Cl2, Cl bond Cl. So it will produce CH3Cl. CH3Cl HCl. HCl. Now look at here. Here till 3 hydrogen present. So if this compound will again react with Cl2 in presence of sunlight, it will again replace 1 hydrogen to make CH2Cl2 plus again HCl. Yes, sir. This reaction will carried out until the all hydrogens will be replaced. Yes, sir. So at the end, look at here, when CH2Cl2 further reacts with Cl2 in presence of sunlight, Yes, sir. it will produce H. CHCl3 Yes, sir. NaCl, and CHCl3 again reacts with Cl2, so it produces CCl4 plus HCl. Yes, sir. हाँ सर कार्बन टेट्राक्लोराइड. Carbon tetrachloride, this is chloroform. Okay, CHCl3, this is methyl chloride, this is methylene chloride. सर क्या है सर सेकंड लास्ट वाला CH3Cl3. नहीं, CHCl3 ओ गलती से लिखा था, CHCl3. सर इसका नाम क्या बोले? टेट्रा कार्बन क्या बोले सर? फिर से बताइए. Carbon tetrachloride, 4Cl present, that's why tetrachloride. Carbon tetrachloride, this is chloroform, general name trichloromethane, that is chloroform. This is methylene chloride, this is methyl chloride. यस सर हो गया. Okay. Next. सर Addition reaction. CH2Cl2 क्या है सर? CH2Cl2 Methylene chloride. Methylene, METHYLENE. अच्छा सर. Next, addition reaction. Addition reaction will be occurred in unsaturated Unsaturated hydrocarbons. hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons to form saturated compounds. Yes. To form Saturated saturated compounds. compounds. ठीक है? Addition reaction will be performed by unsaturated hydrocarbons to form saturated compounds. Suppose I am going to discuss every reaction. Suppose this was the unsaturated compound. What is the name of this compound? C2H6, C2H4. Ethene. Ethene, C2H4. Now, हाँ सर. when ethene
reacts with hydrogen. Okay, but remember when hydrogen The reacts with presence of unsaturated, catalyst. yes, when hydrogen reacts with unsaturated compound, there is catalyst needed, and that catalyst is Nickel. nickel or palladium Yes, sir. or platinum. Okay, nickel, palladium or platinum. Then सर this ये hydrogen, पैलेडियम क्या है सर? पैलेडियम एक मेटल है, निकल के ग्रुप में प्रेजेंट है। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पर देख पाएंगे निकल, ओ अच्छा ठीक पैलेडियम है और प्लाटिनम बोथ आर इन द सेम ग्रुप, so we can take nickel or palladium or platinum. Just because ओके to सर cost 13 we are generally using nickel. सर यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है सर? Catalyst का definition क्या होता है? The substances which increase सर the रेट rate ऑफ of रिएक्शन Increase the बढ़ा rate देता of है। increase. Okay, basically catalyst change the rate of reaction. Now positive catalyst increase the rate of reaction, negative catalyst decrease. So Decrease. generally we prefer catalyst for the increasing, that's why increase. Here basically hydrogen is gaseous substance na, so it has the tendency to exit, okay, from the any reaction medium. So to Yes, sir. trap hydrogen with this alkene, we need catalyst which will bring this hydrogen towards this. Its inherent property to escape because this is the lightest step, but we have to trap hydrogen. That's why catalyst is needed. The nickel surface will hydrogen will be bounded with the nickel surface at first, then nickel and hydrogen that will go to the alkene, and alkene then attach hydrogen from the nickel, removing the nickel as it was earlier case. ओ Yes, हाँ sir. सर ठीक है सर। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ था, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ था, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ था, ये भी था। अब जब भी एडिशन रिएक्शन होगा तो मल्टीपल बॉन्ड्स विल ब्रेक डाउन, डबल Yes, बॉन्ड sir. ब्रेक हो जाएगा, Single. एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब दो हाइड्रोजन मेरे पास था, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, अनदर हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। सो मेथिन इज सैचुरेटेड, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। So basically the process of ओ addition मतलब of सर दो hydrogen, बॉन्ड हट के एक बॉन्ड हट जाता है सर, उस एक बॉन्ड के बदले दो हाइड्रोजन आ जाता है। हाँ एक बॉन्ड हटा मतलब दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड शॉर्टेज हुआ, हाँ सर by the breaking of multiple bonds both the carbon have lose their one valency. So to यस सर fulfill it, one hydrogen will attach this carbon with another hydrogen will attach with this carbon. ओके सर। Now this is basically addition of hydrogen. Okay, this reaction is termed as addition of hydrogen, that is basically called हाइड्रोजनेशन hydrogenation reaction. Okay, addition of hydrogen, hydrogenation. Now this process have the real life existence and real life evidence or usefulness, because by this process we are preparing vanaspati ghee Yes, sir. Vegetable oils. from vegetable oils. Okay, in सर वो vegetable oil, मैर्गाराइन है हाँ सर, मैर्गाराइन जो होता है। हाँ मतलब वो डालडा घी जो होता है ना, ओ अच्छा हाँ सर वही। जमा हुआ एकदम सॉलिड घी जिसको नाइफ से Yes, काट कर sir. मेल्ट करना पड़ता है, वो वाला। क्यों तो बोलते इसी हैं से क्यों, बनता वो है सर। इसी प्रोसेस से बनता है। जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है, वेजिटेबल ऑयल्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके,
with here hydrogen not present, here some alkyl groups present for uh, vegetable oil. This is vegetable oil which have been the unsaturated, okay, when and it is in liquid state, okay, Yes, sir. that is basically fat. Now when hydrogen is being added with it with catalyst, Mhm. so what will we get? Carbon carbon single bond. Here R and here hydrogen and hydrogen. Yes, sir. So this becomes unsaturated. Sorry, this becomes saturated now from unsaturated. Okay, हाँ so it sir, will. हाँ sir. So in saturated compounds, the reactivity decreases, as we told in earlier discussed earlier. Yes, So sir. this will be collected or this will be deposited. This will not further reaction, not reacted. That's why we generally we told that we say that Vanaspati ghee or dalda, it is harmful to body because it will deposited in our body, especially when it will be in cold stage. जितना जो भी हम लोग घी या डाल्डा से बना हुआ चीजें खाएंगे, जब वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो ऊपर वो जमा हुआ लेयर समझ में आता है। Yes, तो sir. अगर ये बॉडी में जाएगा तो क्या होता है, बॉडी में जाता है वो डिपॉजिट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज हार्मफुल। Sir, ठीक है, R दिस फाउंड इन सॉलिड स्टेट। क्या बोले? सर Sir, वो what? आर का मतलब पूछ रहा था। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। नेमिंग के टाइम एल्काइल समझाए थे ना, एल्केन से हाइड्रोजन निकल दिया तो जो बचा हुआ दैट इज एल्काइल। हाँ तो वही एल्काइल है। अब वो एल्काइल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द व्हिच वेजिटेबल ऑयल वी आर टेकिंग। सर तो फिर हम लोग ये डबल बॉन्ड वाला जो लिक्विड स्टेट है सर वही ऑयल कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, बिकॉज वो डिपॉजिट तो नहीं होता ना, ऐसे वो फर्दर रिएक्शन होते निकल जा सकता है बॉडी से। ठीक है, दिस इज वनस्पति घी फॉर्मेशन। बॉक्सेस में एकदम पैथीन में लिखा ही होता है वनस्पति घी, वो येलो कलर का जो बैलेंस Yes, वगैरह sir. आता है डालडा, तो उसमें इसी कंपाउंड से वो बना हुआ रहता है, स्पेशली ब्राउन नट ऑयल से वो बना हुआ होता है। हाँ सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। सर एडिशन ऑयल को रिएक्शन घी में ट्रांसफर क्यों करते हैं सर? ऑयल तो घी में ट्रांसफर क्यों करते हैं? जरूरत के हिसाब से, कॉस्ट कटिंग के लिए। अगर तुम अच्छे से देखने जाओ तो ऑयल का दाम ज्यादा होता है कंपेयर टू वो वनस्पति घी डाल जाता है रेसिपी में। नेक्स्ट, सपोज मेरे पास ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, इसके साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन। ओके, इसके साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर जब ऐड होगा तो क्या आएगा बताओ? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ कौन ऐड होगा? बी आर। ब्रोमीन। Beer. यहाँ क्या होगा? बी आर। Yes, sir. Remember, this bromine water is reddish in color. Okay, but when this reddish bromine water will react with unsaturated compound, it makes colorless. Okay, so the decolorization of bromine water proves that this compound was unsaturated. Okay, if Yes, any sir. organic compound decolorizes the color red color of bromine water, then it is must be
unsaturated compound. By bromine water, we can distinguish, we can identify the saturated or unsaturated compounds. Okay. Even in triple bond, if it will be triple bond, that is alkyne, then also it will be decolorizes. ओ अच्छा Then just only two step will carry out. At first triple bond to double bond, then double bond to single bond. सर और सर 4 बॉन्ड में क्या रहता है सर? कार्बन कहाँ से होता है? कार्बन बोले अभी अरे तक नहीं हम सर, लोग? अरे नहीं सर, वाटर के बाद फॉर्म हुआ ना सर एक, जिसमें 2 नीचे ब्रोमीन है हाँ, सर, और जो 4 बॉन्ड बचा है उसमें क्या होता है? कुछ भी यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन एल्काइल दोनों हो सकता है। जो भी प्रेजेंट रहे वहां पर उसको लिख देना है। ओ ठीक है सर। अगर हम ब्लैंक छोड़े हैं, दैट्स मीन एनीथिंग कैन बी प्लेस्ड हियर, हाइड्रोजन और एल्काइल, और हाइड्रोजन एंड एल्काइल बोथ। ओके, हाँ सर ठीक है। ओके। नेक्स्ट, केमिकल सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें से फर्स्ट है हम लोग का इथानॉल। इथानॉल का हम लोग का रिएक्शंस वगैरह है, एंड उसके बाद क्या है, फिर एसिड है। ओके, सोप्स एंड ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये 3 रिएक्शंस हम लोग को पढ़ना है, कॉम्बसन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। ठीक है, तीनों में तो डाउट है अभी तक? हाँ सर। ओके, नोट डाउन हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। सर बोलो। So now heading to ethanol, chemical compounds. तो नेम से हम लोग को पता चल रहा है, हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग कर चुके हैं। तो इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सर अल्कोहल। alcohol. It is the compound of alcohol. Okay. What is the formula of ethanol? CH3 CH2 OH OH, or we can say C2 H5 OH. Okay, this is the ethanol. yes sir हाँ अभी याद है ना, दिस इज अल्कोहल। ओके, एंड हम लोग जो बेसिकली ये जो सैनिटाइजर जो बन रहा है स्पेशली, वो yes sir मेनली इथानॉल बेस्ड ही होता है, और जो भी अल्कोहल फॉर ड्रिंकिंग होता है वो भी इथानॉल से ही होता है। ठीक है, मिथानॉल इज हार्मफुल, मिथानॉल इज हार्मफुल, सो फॉर द ह्यूमन पर्पस जो भी अल्कोहल यूज करना है वो इथानॉल ही यूज करना है, फॉर ड्रिंकिंग हो या फिर फॉर सैनिटाइजिंग हो। ठीक है, अभी एक टर्म सिर्फ यहाँ पर याद रखना कि इथानॉल में अगर 5% वाटर हो, इथानॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ओके, सर, मेथनॉल क्यों डेंजरस होता है सर? इथानॉल डेंजरस होता है उसका प्रॉपर्टीज तो लेती है, मिथानॉल में क्या है, सिर्फ एक सिंगल कार्बन है। ठीक है, तो वो रिएक्शन में जल्दी से पार्टिसिपेट करने लगता है, फर्दर वो उसका कंबसन वगैरह होने लगता है, इसलिए। yes sir इथानॉल क्या बोल रहे थे, हाँ, इथानॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए याद रखना है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, yes और sir जनरली
जनरली अगर मेरे पास 100% अल्कोहल है, 100% इथानॉल है, 100% इथानॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। Absolute alcohol. Sir, a 50% moderate. 50% मॉडरेट जनरली जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, द कंसेंट्रेशन ऑफ इट नियर अबाउट टू 35 टू 60 के बीच में रहता है, ठीक है, 35 टू 50 60 के बीच में रहता है। एसिड बदला तो 30 से भी लो रहता है। क्या चीज है 30 से भी लो होता है? कंसेंट्रेशन ओ अच्छा। मतलब जो एसिड्स हम लोग यूज करते हैं लैब में, वो 30% भी कंसेंट्रेशन नहीं रहता है, बिकॉज अगर कहीं से भी कुछ भी गलती हो गया तो बहुत हार्म चलेगा, इसलिए पूरा डाइल्यूट ही भेजा जाता है। सर 100% कंसेंट्रेट कभी नहीं हो सकता। नहीं देता है, 100% एसिड नहीं देता है, फायदा ही नहीं है। वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कम करेगा ना। हम लोग तो क्लास 10 में हो फर्स्ट चैप्टर में एसिड बेस पढ़े थे ना, फर्स्ट या हाँ सर, सेकंड वो में। आयोनाइज ही नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा तो फिर हम एसिडिक प्रॉपर्टी तो शो ही नहीं कर पाएंगे। सर पर डेंजर होगा ना वो। डेंजर बहुत है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। H2SO4 98-96% में वो जो फ्यूम्स देता है ना, तो उसमें तुम लोग काम ही नहीं कर पाते, मतलब हम लोग भी कभी काम नहीं किए। 98% H2SO4 आता ही नहीं है, 90 एसिड तो छोड़ ही दो। तो जनरली वो 30 to 40 के बीच में ही रहता है, तभी तो इसका सर केमिकल क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं सर? कहाँ पर 100% इथानॉल इज। इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है। तो फर्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देते हैं कंबशन। तो मेरे पास ये था इथानॉल C2H5OH। अब इसको अगर कंबशन कर ले मतलब तो इसके साथ रिएक्शन, कंबशन मींस टू रिएक्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, Oxygen. ठीक है। देन ये कंबशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, कार्बन है मतलब ये CO2, हाइड्रोजन है मतलब ये वाटर, साथ ही साथ लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। हाँ तो सर। इथानॉल ये जो कंबशन होने के बाद CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए इथानॉल फ्यूल के हिसाब से भी यूज होता है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जहाँ भी इंडिया में जो राइस का राइस जो हम लोग खाते हैं, राइस बहुत सरप्लस हो चुका है बहुत जगहों पे, तो उस राइस को फर्मेंटेशन करके इथानॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है। बिकॉज इतनी क्योंकि उसी इथानॉल से सैनिटाइजर भी गवर्नमेंट बना रहा है, उसी इथानॉल को यूज करेगा फॉर मिक्सिंग विथ पेट्रोल, बिकॉज वो फ्यूल के साथ अच्छे से मिक्स होता है और बर्न करने के बाद CO2 हीट प्रोड्यूस करता है। तो अभी जो न्यू बाइक्स, न्यू कार्स, न्यू गवर्नमेंट का रूल्स लॉन्च हो रहा है कि पॉल्यूशन को घटाना है, तो पेट्रोल की जगह पे इन फ्यूचर हम लोग देख सकते थे इथानॉल, इथानॉल से चलने वाला बाइक्स एंड कार्स हम लोग यूज कर रहे हैं। सर इससे नुकसान नहीं होगा सर? ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज जो हम लोग पेट्रोल बर्न कर रहे, पेट्रोल में जो कार्बन का अमाउंट है, इथानॉल में तो उस कार्बन का अमाउंट लेस है ना। पेट्रोल में नियर अबाउट C8 to C15 के आसपास होता है पेट्रोल डीजल वगैरह में, यहाँ पर हाँ सिर्फ सर, दो ही तो वो कार्बन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ज्यादा करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। दैट्स ठीक है। तो इथानॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, ठीक है। फॉरेन्स में तो ऑलरेडी ये बहुत जगह पे हो भी चुका है, इंडिया भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। तो अभी इथानॉल से तो फिलहाल सैनिटाइजर बनाने के लिए काम चल रहा है। नेक्स्ट, oxidation reaction. So remember, uh, okay, this is alcohol. In third bracket O means it is oxidation. Okay. So to oxidize ethanol, we have to use oxidizing agent. Oxidizing agent is
alkaline CaMnO4 potassium permanganate, that is purple in color, okay, and some amount of heat, फॉर्मूला क्या और बोले सर, एक बार फिर से बोलिए सर, हेवी आ रहा है बहुत। फॉर्मूला सर, alkaline फिर उसके बाद CaMnO4 potassium permanganate, potassium Camen manganese O4, or we can use acidified Sir, Cr2O7. K2Cr2O7 potassium dichromate, that is orange in color. So by the using of these oxidizing agents, ethanol will be converted to ethanoic acid. What is the Yes, sir. formula of ethanoic acid? CH3COOH. CH3 COOH, very good, plus water. Yes. Okay, so remember, alcohol on oxidation, it produces acid. Sir, Okay, C2H5OH C2 H5OH plus क्या लिखे सर? plus oxygen in third bracket, oxygen in square bracket. This represents oxidation reaction. Sir, this is एक oxygen. नहीं, this represents oxidation reaction. सर ऑक्सीजन तो सर मॉलिक्यूल होता है ना सर, तो वो दो हाँ, ऑक्सीजन को लेकर रिएक्ट करता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ही इसके साथ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन Yes. ऐड होता है, बट हम लोग इससे मतलब समझा रहे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिंबल है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का Yes. सिंबल है, ठीक है, दिस इज द ऐसे तो सिंबल दो ऑफ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए ना। तो बेसिकली यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, जो ऑक्सीजन आता है मैकेनिज्म में, हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो पता बहुत कुछ चलेगा। ये बता रहे थी ऑक्सीजन तो ही जाएगा, लेकिन ये सिंबल है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे समझाया जाता है, हाँ सर वो ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, विथ मेटल, मान लो ये मेरा अल्कोहल है, इसके साथ हम लोग मेटल का रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग नेम लिखते चलना ऊपर हेडिंग में, ठीक है, इसके ऊपर में लिख लेना, दिस इज कंबशन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नहीं तो बाद में भूल जाओ तो। हाँ सर लिख रहे हैं। ठीक है, हेडिंग कर लेना, दिस इज विथ मेटल। तो रिमेम्बर, व्हेन मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, देन इट प्रोड्यूस मेटल, मतलब कोई भी अल्कोहल हो वो फॉर्म करता है मेटल एल्कोक्साइड, ठीक है। नॉर्मल कोई भी अल्कोहल हो, अल्कोहल प्लस मेटल, इट विल फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड। हियर मेटल रिएक्ट्स विथ इथेनॉल, सो इट विल प्रोड्यूस मेटल इथोक्साइड, ठीक है। Yes. सो C2H5OH प्लस मेटल तो जैसा पे सपोज ले लिए सोडियम, सो इट फॉर्म्स C2H5O minus Na plus, that's mean ONA. Basically metal replacing hydrogen and it produce H2. hydrogen. Now look at here, we know that sodium, that is metal, so metals are positive in nature or negative? सर positive. Positive. And hydrogen generally? Negative. नेगेटिव। No, generally positive. हाँ सर जनरली होता है। Hydrogen is here positive, so sodium is being positive, it replaces hydrogen because hydrogen is also positive, so positive can replace positive, okay. So Okay, sodium sir. being attached with the negative portion, this is C2H5O minus, this is the negative portion, this is positive, it will attach with negative portion and replaces the positive one. So ओह अच्छा। basically we will take 2C2H5OH, then it will form 2C2H5ONA, and due to 2 molecules of ethanol, H2 is being removed H2. out. हाँ वहाँ सर पे ठीक। C2H5O minus Na plus है। हाँ, सर मेटल एल्को ऑक्साइड मतलब? नेमिंग होता है, जैसे हम लोग IUPAC नेमिंग किए ना, तो इस कंपाउंड का क्या नेम होता, इस कंपाउंड का नेम होता मेटल एल्कोक्साइड, अल्कोहल से आ रहा है ना, तो एल्को Yes, sir. ऑक्साइड,
ओ अच्छा। वो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है ऑक्साइड, तो वो अल्कोहल प्लस ऑक्साइड में लास्ट वाले ऑल हटाकर एल्कोऑक्साइड। ओके सर। सर ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है। यस, चैप्टर तो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डू हेडिंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन। Dehydration means dehydration reaction. Dehydration means removing or losing of water molecule. हम लोग बोलते हैं ना बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुका है, Yes, sir. तो डिहाइड्रेटेड का मतलब हुआ कि बॉडी पूरा वाटर लॉस कर चुका है, तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस होना। सर तो 3 सपोज मेरे, हाँ सर 3 नंबर का रिएक्शन करना। ये था विथ मेटल। यस सर, रिएक्शन विथ मेटल्स। This is dehydration reaction. So dehydration means removing of water or losing of water. So this is ethanol, CH3CH2OH. अब इथानॉल में हम लोग क्या सप्लाई करेंगे? इथानॉल में हम लोग Hot सप्लाई करेंगे concentrated. यस हॉट कंसेंट्रेटेड Yes, sir. H2SO4, ठीक है, विथ सम हीट दैट इज नियर अबाउट 160 to 180 डिग्री सेल्सियस, Yes, sir. ठीक है। देन इट विल फॉर्म CH. C2H4, और अगर ब्रेव में लिखे so CH211CH2 plus water. H2. Now look at here. How this C2H4 or CH2CH2 forms? From here one hydrogen and OH is being removed out. H and OH removed out. So water removed out, and after the hydrogen and OH removing, this carbon having one valency shortage, this carbon having one valency shortage. So they will सर attach एक with बार और each other. समझाइए ना सर, समझ में नहीं आया। सर टेम्परेचर कितना है सर? 160 to 180. ओ अच्छा। हम इस पे एक्सप्लेन कर एलाबोरेट करके ड्रॉ कर दिए। So this hydrogen and this OH is being removed out. Okay, so when this hydrogen and this OH being removed out, so this valency is retain shortage, no, remain shortage of this carbon. यस Yes, sir. हाँ This सर। this carbon will also have one valency shortage after the removing of hydrogen. यस यस सर। सर। So this sort of valency and this sort of valency will attach with each other to make a bond between these two carbon, which is represented here. हाँ ओ सर। क्योंकि यहाँ से क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ से ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 तो प्रेजेंट था, दिस वाज प्रेजेंट विथ इनिशियली फ्रॉम इनिशियली, but Sir. after the removing of hydrogen, this carbon has one shortage of bond. After the removing of OH, this carbon has one shortage of bond. This shortage of bonds will attach with each other to make a new bond between these two carbon. That makes Yes, sir. alpene. यस सर। होते हैं। तो फिर वो OH और H मिलके H2O बन जाएगा। H2O बन जाएगा। हाँ, H और OH मिलकर H2O बना दिया। सर कार्बन Yes. के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। कार्बन के साथ सर बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि एस्टर प्रोड्यूस करना, फ्रॉम अल्कोहल एस्टर प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी अल्कोहल ले लो, उसके साथ अगर हम लोग एसिड डाल दे रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. तो अल्कोहल प्लस एसिड इट फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर। अभी जो एस्टर है इसका एक स्वीट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ठीक है, स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल जिसको हम लोग बोलते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो अगर अल्कोहल में एसिड डाल रहे और स्वीट स्मेल आ रहा है, स्वीट फ्रूटी स्मेल आ रहा है, दैट्स मीन मेरा एस्टर प्रोड्यूस हो गया। दिस रिएक्शन बेसिकली यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और एसिड। हाउ?
suppose we have supplied alcohol, okay, and acid. We have supplied two components in two glass. One in alcohol we know, but another is acid or not, we don't know. So we will put acid in or alcohol in the unknown substance. If fruity smell comes, that means it is acid, Yes, sir. because alcohol with acid only it forms as ester. Now Yes, sir. suppose we have supplied known acid, but alcohol or not, we don't know. Then we will put into it. If it will produce fruity smell, then we can say that it was alcohol. So the reaction here, suppose we are taking C2H5OH plus acetic acid, Yes, sir. CH3COOH, in presence of Acid. concentrated H2SO4. Okay. So by the removing of water, look at here. From here, hydrogen is being removed out. From here, hydrogen is being removed out. From Yes, here, sir. OH being removed out. So remaining portion will be attached. So remaining portion means CH3, Yes, sir. CO, O, C2H5. Okay, we have to write acid portion in ester first. The portion of acid will be remain as the first portion in the ester. So CH3CO, and now add from the this end. So OC2H5. Okay, and I have told that ester will be named as alkyl alkanoate Yes, sir. for IUPAC. So this is the alkyl portion. So what is हाँ the sir, name of this alkyl? This is तो ये मीथेन है. ये So मीथेन है इथेन, C2H5 इथेन. सो इथेन से अल्काइल क्या बनता है? इथाइल. इथाइल. ठीक है, अब इथाइल तो छोड़ दो. अब कितने कार्बन है मेरे पास? दो. 2. कार्बन से क्या बनता है? एसिड. हाँ 2 कार्बन वाला एसिड क्या होता है? एसिटेट. 2 कार्बन वाला एसिड क्या होता है? इथानोइक एसिड. हाँ सर. Yes, sir. ये तो इथानोइक एसिड है ना, तो इथानोएट हो जाएगा. इथाइल इथानोएट. हम कैपिटल में लिख दिए, स्मॉल होगा. इथाइल इथानोएट, एल्काइल एल्कानोएट. ठीक है, सिंपली हम लोग जो मार्केट में इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, वो हाँ मार्केट सर, ये नेम अब होता पता है है. इथाइल एसीटेट प्लस Yes, वाटर. sir. सर इसका IUPAC नेमिंग कैसे होता है? यही है ना आईयूपीएसी में, इथाइल इथानोएट. ये वाला पोर्शन, एल्काइल करके बोले थे ना सर. हाँ, एस्टर का ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो इसको आर डस्ट मान लिए. तो ये वाला पोर्शन एल्काइल हो गया, इसको एल्काइल के हिसाब से रख देना है. अब यहाँ पर जितने कार्बन रहेगा, उस कार्बन का जो भी एसिड होगा या फिर जो सिंपल एल्केन होगा, एल्केन तो लिख देना है, इथेन लिख दिए, और फिर लास्ट में ओएट ऐड कर देना है. हाँ सर, ठीक है. ठीक है, तो अल्कोहल कंप्लीट हुआ, बचा रहा एसिड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. एसिड सोप्स एंड डिटर्जेंट, देन चैप्टर विल बी कंप्लीट और नॉट. सर बस सर इथेनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना था, कैरेक्टरिस्टिक. वो तो नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा. नहीं, और एक एसिड है, एसिड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है. ठीक है, तो एसिड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है सर. Yes, sir. ठीक है, तुम लोग ये अल्कोहल को अच्छे से रीड करो, रिएक्शंस को अच्छे से रीड करो, और उसका जो यूजनेस है ना अल्कोहल का, यूज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स थोड़ा उसको रीड कर लेना. Yes, sir. ठीक है, ठीक है सर. हाँ बोलो, क्या कोई कुछ बोल लेते हैं? सर हाँ, सर एनसीईआरटी में सर दिया हुआ है सर ये सब ले सर, लेकिन
एग्जाम्पल थोड़ा कम दिया हुआ है सर, तो फिर कोई रेफरेंस बुक से रेफर कर सकते हैं? रेफरेंस बुक तो बहुत है, जो तुम लोग तो ऑल इन वन भी आता है, अरिहंत का, फिर जाता है चांद पब्लिकेशन का भी बुक आता है, सर मेरे पास एमटीजी है। एमटीजी भी है, कुछ भी फॉलो कर सकते हो। सर क्योंकि कार्बोनेट्स कंपाउंड थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो ऑल इन वन कर सकते हो, एमटीजी कर सकते हो, चांद कर सकते हो, जो प्रेफरेबल लगे। ओके सर। और एक सिर्फ डेफिनेशन याद रखना, यूजर्स तुम लोग रीड करने से याद हो जाएगा, तो डिफिकल्टी आई थिंक नहीं होगा होने से बोलना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन याद रखना, दैट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। देखो नेम से क्या पता चल रहा है कि नेचुरल अल्कोहल है, लेकिन उसको हम लोग डीनेचुरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ड्रिंकिंग और फॉर ह्यूमन पर्पस कौन सा अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं? सर इथेनॉल। इथानॉल। तो इथानॉल को जब हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट बना देते हैं, उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते, देन उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ओ अच्छा। So we can say that ethanol which has made unfit for drinking by mixing or by adding कुछ पॉइजनस चीज हम लोग ऐड कर देते ताकि वो ड्रिंकिंग के लिए फिट ना रहे, देन इट इज कॉल्ड डीनेचर्ड। तो क्या ऐड करते हैं? एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ poisonous substances like methanol। as I told that methanol is poisonous, तो इथानॉल में अगर मिथानॉल डाल दिए या फिर पिरिडिन डाल दिए, ठीक है, या फिर कॉपर सल्फेट डाल दिए, कुछ भी पॉइजनस चीज डालकर अगर हम लोग इथानॉल को मेड फॉर अनफिट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब अल्कोहल को डीनेचर्ड कर दे, नेचुरल पे नहीं रख दे, देन यस इट इज सर। कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ये तीन डेफिनेशन एक्चुअली एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्या बोले? सर हम लोग पॉइजनस क्यों कर देते हैं सर? तो फिर पीने लायक ही नहीं, तो फिर फायदा क्या होगा हाँ पॉइजनस मतलब करके? क्या होता है कि मतलब ज्यादा मान लो कि कोई भी पर्सन बहुत अल्कोहल कंज्यूम वो कर रहा है एडिक्टेड हो तो जाता है सर जो। एडिक्टेड हो जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? पॉइजनस बना देते हैं, ठीक। और सर तो अगर वो वो नहीं देखा हम लोग पॉइजन मिलाए तो फिर क्या होगा? तो उसका बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स आएगा, एक बार आएगा डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, फिर वो नहीं पिएगा। अच्छा सर ठीक है। ठीक है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या था? 5% वाटर अगर प्रेजेंट है तो देन इट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। 100% प्रेजेंट है तो एब्सोल्यूट अल्कोहल, और अगर उसमें कुछ और मिला दिए पॉइजनस तो दिस इज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ये तीन डेफिनेशन याद रखना। सर इसको अनफिट क्यों किया जाता है? वही तो बोले कि जो भी मतलब पर्सन एडिक्टेड हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड वाला पोर्शन, इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करो। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम। पायरीडाइन के बाद क्या लिखे हैं? CuSO4। किसके बाद? पिरिडिन, हाँ, CuSO4, CuSO4 एटसेट्रा, देन इट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। सर क्यों ओके। डाला जाता है? हाँ हाँ, सर ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग क्यों डाला जाता है? वही बताए कि
जो भी पर्सन एडिक्टेड हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि अल्कोहल का मिसयूज ना किया जाए फॉर ड्रिंकिंग। सर पर तब भी तो आदमी पीता ही रहता है। पीता रहता है, बोलते हैं ना जहरीला शराब, क्यों बहुत बार न्यूज में आता है, यही सब मिसा हुआ रहता है। लोकल पब्लिक जानता नहीं है, पीता है और बीमार पड़ता है, तबीयत खराब होता है, डेथ होता है। ओ ठीक अच्छा है, सर। न्यूज में तो बहुत बार आता है ना कि किसी भी लोकेलिटी में फॉर द ड्रिंकिंग अल्कोहल सो मेनी पर्सन इज बीन इल। तो क्यों है, हाँ सर। क्योंकि वो अल्कोहल नॉट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट ब्रांडेड कंपनी, तो वो जो पॉइजनस मिलाते ही बेचता है और इंसान पीता है और ऊपर से बहुत कम दाम में भी बेचता है, कम इसलिए दाम सर। में भी। तो टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस हम लोग ये करते हैं। सर अगला क्लास में क्या कराएंगे सर? इसी का लास्ट पोर्शन इथानोइक एसिड वाला। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. बाय Bye, सर। sir. बाय बाय। डन, सब तो लिख लिए? हाँ, sir. यस। हाँ ओके सर, हो गया सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।